السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ابتدا ہے قادر مطلق کے نام سے جو ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اے اللہ تیری کریمی کا تجھے واسطہ، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی بیماری اور آفت سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز بڑی خبر سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی میں کورونا سے زیادہ اموات کا شور مچا کر خوف پھیلایا گیا۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ کورونا سے زیادہ اموات نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہے۔ 3 ہفتے سے کورونا پر جاری سیاست کو اب بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی نوید بھی سنا دی۔ ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں۔ اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کورونا کی وجہ سے۔ اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے؟ کیا یہ ٹھیک تھی؟ کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ جب ہم کوآرڈینیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، کنسنسس سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کورونا کا یہ کرائسس بہت برا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی میں کورونا سے زیادہ اموات کا شور مچا کر خوف پھیلایا گیا۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ کورونا سے زیادہ اموات نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہے۔ 3 ہفتے سے کورونا پر جاری سیاست کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی نوید بھی سنا دی اور انہوں نے کہا کہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، غیر ذمہ دارانہ بیانات درست نہیں۔ کورونا پر سیاست بند کی جائے، خوف پھیلانا غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ وزیر اعظم نے نام لیے بغیر تنقید کی اور کہا کہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مؤثر نہیں ہوگا۔ عوام خود سمجھے۔ صورتحال میں مہنگائی اور غربت بڑھی تو ہم سمجھیں کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کراچی میں کورونا سے زیادہ اموات کا شور مچا کر خوف پھیلایا گیا۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ کورونا سے زیادہ اموات نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہے۔ 3 ہفتے سے کورونا پر جاری سیاست کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس طرح کی سیاست کسی کے حق میں نہیں، وزیر اعظم نے کہا۔ وزیر اعظم نے ایک لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی نوید بھی سنائی۔ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کے دوران ایک بار پھر ذخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ مافیا کو سخت ایکشن کے لیے خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے مسئلے میں لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے، ہمیں خوف ہے گندم کی سمگلنگ کی جائے گی۔ اس بار جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذخیرہ اندوزی کرنے والے مالکان کو پکڑیں گے۔ خبردار کر رہا ہوں، اصل مجرموں کو پکڑا جائے گا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر یہ بڑی سختی ہوگی اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے۔ دوسری چیز ہے سمگلنگ۔ اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو سمگل کریں گے۔ اس کے لیے سمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی سمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی، کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چھوٹے تاجروں کو کاروبار کھولنے کی یقین دہانی کروا دی۔ سندھ حکومت اور تاجروں پر مشتمل کمیٹی 24 گھنٹوں میں SOPs بنائے گی۔
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कराची के छोटे ताजिरों ने मुलाकात की, जिसमें लॉकडाउन के दौरान मार्केटें खोलने के हवाले से बातचीत की गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने छोटे ताजिरों को होम डिलीवरी के जरिए SOP के तहत काम करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध ने SOP को मद्देनजर रखकर छोटे ताजिरों को रोटेशन की बुनियाद पर दुकान खोलने की तजवीज भी दी। उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज बांट लिए जाएं। जिस दिन कपड़े की दुकानें खुलें उसी रोज दर्जी और उनसे मुंसलिक दीगर दुकानें भी खोली जाएं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ AC लगाने वालों की दुकानें भी खोली जा सकती हैं। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा सईद गनी, सैयद नासिर हुसैन शाह, इम्तियाज शेख पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी, जो 24 घंटों में ताजिरों से मिलकर SOP बनाएगी। वज़ीर आला सिंध ने SRB टैक्सेस और सूबाई एक्साइज के टैक्सेस में कारोबारी लोगों को बड़ी रियायत देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वो कमेटी की सिफारिशात पर वफाकी हुकूमत से बात करने के बाद SOP के तहत इजाजत देंगे और छोटे ताजिरों को कर्जे दिलाने के लिए भी वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमने ताजिरान दुकानें और कारोबार खुलवाने के लिए चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से सुमोटो एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया। नईम मीर कहते हैं कि रियासत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नौबत आ गई है। ऑल पाकिस्तान अंजुमने ताजिरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा किया कि वो दुकानें और कारोबार खुलवाने के लिए सुमोटो एक्शन लें। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं, मुनाफिकत, अकरबा परवरी और जुल्मो जबर है। रियासत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, हर गली और बाजार में फसाद नहीं चाहते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नौबत आ गई है। उनका कहना था कि हुकूमत हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है, मरकज और सूबे एक पेज पर नहीं है। नईम मीर ने कहा कि जुज़वी कारोबार खोलने का ऐलान ताजिरों के साथ मजाक है। ये यू टर्न हुकूमत है, हर दफ़ा बुलाकर नया लॉलीपॉप दे देती है। उन्होंने पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, ताजिरों को पकड़ते हैं और अगले चौक पर पैसे लेकर छोड़ देते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमा से मुशावरत के बाद रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज और तरावी के लिए मुतफ़िक़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कोरोना फैलने के ख़तरे से बचाव के लिए मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज पंजगाना और जुमा और तरावी के इज्तिमा की मशरूत इजाज़त होगी। उलमाए मशाइख के इजलास के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वबा के दौरान रमजानुल मुबारक की मुतफ़िक़ा पॉलिसी का ऐलान करते हुए हिदायत दी हैं कि साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। सड़कों, फुटपाथों पर नमाज और तरावी पढ़ने से इज्तनाब करें ताकि सब इस मूजी वबा से महफूज रहें। सदर मुमलिकत ने मसाजिद के अहाते में नमाज और तरावी के एहतमाम पर जोर दिया है। उनका कहना था कि नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। लाजिम है कि मास्क पहनकर मस्जिद में और इमाम बारगाह में तशरीफ लाएं। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर यह है कि घर पर एहतिकाफ करें। मौजूदा सूरत हाल के अंदर लोग घरों के अंदर तरावी पढ़ें तो वो भी अच्छी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में भी रात की इबादत अपने घर में ही की। मसाजिद इंतज़ामिया को इन एहतियाती तदाबीर के साथ और इमाम बारगाहों की इंतज़ामिया को इन एहतियाती तदाबीर के साथ ये मशरूत इजाज़त है कि वो तरावियों का और फ़राइज़ नमाज का और जुमे का एहतमाम करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें कि अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में फैसले पर नजरसानी करेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सफबंदी के दौरान नमाजियों में 6 फीट का फासला किया जाए, मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। उन्होंने उलमा को जोर दिया कि वो यकीनी बनाएं ताकि कोई भी नमाज के दौरान बगलगीर न हो, ताकि मुतासर अफराद बीमारी फैलाने का सबब न बने। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह ताला से मगफिरत और वबा से निजात मांगते हैं। रमजानुल मुबारक में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है और इजलास का मकसद रमजानुल मुबारक के लिए हम आहंगी पैदा करना है। ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान के ज़ेर सदारत उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कोरोना सूरत हाल के तहत माह रमज़ान में इबादात और फ़राइज़ की अदायगी के लिए 20 निकाती एजेंडा मंजूर कर लिया गया। तयशुदा नकात के तहत मसाजिद और इमाम बारगाहों में दरियां या कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। मस्जिद के फर्श को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होगा और नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला रखा जाएगा। मसाजिद के अहाते के अंदर नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाएगा। जहाँ मस्जिद में सहन है वहाँ सहन में नमाज पढ़ी जाए। सड़कों और फुटपाथों पर नमाज और तरावी पढ़ने से इज्तनाब करें। नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। लोग मसाजिद और इमाम बारगाहों में मास्क पहन कर आएं, मसाफा न करें और गले न मिलें। मस्जिद
मस्जिद के अंदर चेहरे पर हाथ न लगाएं। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर है कि घरों में तरावी पढ़ें। मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। वजू घर से ही करके मस्जिद में जाया जाए। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम नहीं होगा। इंतजामिया हिफाजती तदाबीर के साथ फराइज और इबादत को यकीनी बनाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि माह सयाम के दौरान तदाबीर पर अमल न किया गया या मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ तो अहकामात और पॉलिसी को बदल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं चीनी चोरों की अगर इमरान खान के दौर में ना हुई तो फिर कभी नहीं होगी। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से दूरी इख्तियार कर सकते हैं तो बाकी वज़रा ज़्यादा अहम नहीं। जिस वज़ीर का भी नाम रिपोर्ट में आया उसको फक्की ज़रूर मिलेगी। रेलवे के वजीर शेख रशीद अपनी वजारत पर कम और सियासी शोबदाबाजियों पर ज्यादा तवज्जो देने के आदी हैं। अभी चंद दिन पहले फरमाया कि जहांगीर तरीन पीटीआई का हिस्सा और इमरान खान के करीब हैं, कोई उन्हें दूर नहीं कर सकता। अब पता नहीं किसके कहने पर पैंतरा ही बदल लिया। जहांगीर तरीन पीटीआई का अहम मेंबर था। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से फासला कर सकता है तो दूसरे वजीरों से भी कर सकता है जो जहांगीर तरीन से कम अहम है। शोशे छोड़ने या वन मैन शो बनने की ख्वाहिश कहें, इसमें भी कोई शेख रशीद का सानी नहीं। रिपोर्ट में नाम नहीं लेकिन अपना नाम लेकर बोले इन समेत किसी भी वजीर का नाम आया तो कार्रवाई होगी। सारे वजीरों के खिलाफ कोई भी वजीर मेरे समेत निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ, अगर कोई आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया इमरान खान नहीं छोड़ेगा और ये क्रेडिट उसको दें। ये रिपोर्टें उसके दौर में आई। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रेलवे के अमूर से मुताल्लक थी लेकिन सियासी हरीफों पर भी खूब गोलाबारी की। शाह साहब ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। कौमें बुरान में इकट्ठी होती हैं। कौमों पे ये फ़र्ज़ है कि जब आफात आएँ, जब सैलाब आएँ, जब ज़लज़ले आएँ तो वो सियासत नहीं करते बल्कि मिलजुल के इस मुसीबत को बांटते हैं। और तो और अपने पुराने दोस्त और हरीफ शहबाज शरीफ पर भी एहसान झाड़ दिया। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया और मैंने उसको वहाँ आपके ज़रिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों ख़त्म हो जाएगी, और ये आए आखिरी फ्लाइट पकड़ के। वज़ीर आज़म इमरान खान के कसीदे पढ़ने में भी शेख रशीद ने सबको पीछे छोड़ दिया। कहते हैं दुनिया सियासत में इमरान खान के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। याददाश्त कमजोर या कप्तान की मोहब्बत का खुमार, शेख रशीद अपना कहा ही भूलने लगे। 7 अप्रैल को कहा जहांगीर तरीन और इमरान खान में दूरियां नहीं हो सकती। आज कहते हैं इमरान खान ने जहांगीर तरीन से दूरी इख्तियार कर ली है। देखें, जहांगीर तरीन जो है वो पीटीआई की अहम शख्सियत थे और हैं भी। ये जो केस आया इसका फैसला 25 तारीख को होना है। जहांगीर तरीन ने मौजूदा इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट्स के बारे में और उसके तंजीमी मामलात में उसका बड़ा अमल दखल था, और एक दिन में ये कहना कि इमरान खान और जहांगीर तरीन में फासले हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। चीनी एक इशू है। जहांगीर तरीन पीटीआई का अहम मेंबर था। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से फासला कर सकता है तो दूसरे वजीरों से भी कर सकता है जो जहांगीर तरीन से कम अहम है। अगर जहांगीर तरीन से इमरान खान फासला कर सकता है जो उसके बहुत ही करीबी और बुनियादी दोस्तों में से था, तो फिर ये वजीर तो टेक्नोक्रेट वजीर हैं, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है, इसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याददाश्त कमज़ोर या कप्तान की मोहब्बत का खुमार, शेख रशीद अपना ही कहा भूलने लगे। 7 अप्रैल को कहा जहांगीर तरीन और इमरान खान में दूरियां नहीं हो सकती। आज कहते हैं इमरान खान ने जहांगीर तरीन से दूरी इख्तियार कर ली है। तहरीक इंसाफ के कराची से रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं कि 20 माह का अरसा गुजर गया, कराची शहर और अपने हल्के के लिए कुछ नहीं कर सका। कप्तान का एक और खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता, हल्के और कराची के लिए कुछ न करने पर रुकन कौमी असम्बली मायूस। कराची के हल्का 256 से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने इस्तीफा दे दिया। कौमी असम्बली से तनख्वाह और मराद भी नहीं लेते थे। नजीब हारून ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर आजम इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना इस्तीफा भिजवाया है, जिसका अक्स उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है। नजीब हारून ने कहा कि उन्हें रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए 20 माह का अरसा हो गया, लेकिन इस दौरान न अपने हल्के लिए कुछ कर सके और न ही शहर कराची के लिए उन्होंने कोई काबिल कदर काम किया है। पार्टी पॉलिसीज पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता, इसलिए मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इस ओहदे पर मजीद रहूं। पार्टी के कारकुन की हैसियत से काम करता रहूंगा। पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 1832 हो गई है, जबकि इस बीमारी से जाँ बहक होने वालों की तादाद 143 है। मुतासरीन की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई।
मुल्क में अब तक कोरोना के मजीद 465 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 7,481 हो गई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1,832 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर वापस घरों को लौट चुके। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में बड़ी तादाद में मरीज तेजी से सेहतयाब होकर घरों को लौट रहे हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 84 केसेस सामने आए, जबकि सिंध से 138 केसेस मंजरे आम पर आए। पंजाब से कोरोना मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आई है, जिसके बाद 24 घंटों के दौरान सिर्फ 19 केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में 8 केसेस और इस्लामाबाद से मजीद 9 केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तहाँ वहाँ केसेस की तादाद 250 है। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 192 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद सिर्फ 55 रह गई है। आज़ाद कश्मीर में भी कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 5,70,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। आलमी वबा दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 22.5 लाख से बढ़ गई है। वहाँ इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और मजमूई सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,81,000 से ज्यादा है। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहाँ 24 घंटों में 2500 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं और हलाकतों की मजमूई तादाद 37,000 से बढ़ चुकी है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 63,000 से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 1,91,000 से ज्यादा है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 74,000 से ज्यादा है। इटली में 1,73,000 मुतासरीन में से 42,000 सेहतयाब हो चुके हैं। फ्रांस में 1,47,000 में से 34,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ईरान के 81,000 मरीजों में से 55,000 सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जा रही है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। कोरोना वायरस से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के लिए उम्मीद की बड़ी किरण बन गया। पंजाब में प्लाज्मा थेरेपी के लिए हतमी SOPs की तैयारी के बाद इसे जल्द आजमाइशी बुनियादों पर शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी को 1980 से मुख्तलिफ अमराज का इलाज करने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें खसरा, पोलियो और इन्फ्लुएंजा जैसे अमराज शामिल हैं। प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जा रही है। SOPs की तश्कील हतमी मरहले में है। जल्द ही इससे तरीका इलाज की आजमाइश का आगाज कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जितना होगा जल्दी उतना आवाम के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान में जब ये इसका इलाज दरियाफ्त होगा तो लाजमी बात है इनको फ़ायदा बहुत पहुंचेगा और ये जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उसकी। दूसरी जानिब जानलेवा बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा भी इंतहाई खुश आइंद है। पंजाब में अब तक कोरोना वायरस से शफायाब होने वालों की तादाद 536 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में कोरोना वायरस के 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 541 हो गई। कोरोना वायरस के 22 लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का आज 26वां रोज है। लाहौर शहर में पुलिस की जानिब से 200 से ज्यादा नाके लगाकर शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद समेत डबल सवारी और दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मोदी हुकूमत कोरोना की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत और कशीदगी को बढ़ोतरी दे रही है। भारतीय सहाफ़ी अरुंधति रॉय ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, मोदी सरकार का एजेंडा ही मुसलमानों की नस्ल कुशी है। मारूफ भारतीय मुसन्निफा और सियासी कारकुन अरुंधति राय ने एक बार फिर मोदी सरकार के औचे हथकंडों का पोल खोल दिया। भारतीय मुसन्निफा और सियासी कारकुन अरुंधति राय ने कहा कि हुकूमत अक्सरियती हिंदू और अक़लियती मुसलमानों के माबैन कशीदगी को हवा दे रही है। भारत में मुसलमानों के लिए सूरत हाल नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रही है। जर्मन रेडियो को इंटरव्यू में भारतीय मुसन्निफा ने खबरदार किया कि भारत कोरोना की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जो सूरत हाल पैदा कर रहा है, इस पर पूरी दुनिया को नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना ने इतना बहरान पैदा नहीं किया जितना बहरान
नफरत और भूख ने पैदा किया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक बहरान है। कोरोना वायरस की वबा की आड़ में भारतीय हुकूमत नौजवान तलबा को गिरफ्तार करने में लगी है। बुकला सियासी और समाजी कारकुनों और दानिशवरों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा चुके हैं और उनमें से कुछ को तो हाल ही में जेलों में बंद भी किया जा चुका है। अरुंधति राय ने कहा कि RSS नामी पूरी तंजीम जिससे वज़ीर आज़म मोदी का भी ताल्लुक है और जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के पीछे फाल असल ताकत है, वो तो अरसे से ये कहती रही है कि भारत को एक हिंदू रियासत होना चाहिए। ताइवान में हफ्ते में तीसरी बार कोरोना का नया केस सामने न आने पर खुशी का इजहार किया गया। ग्रैंड होटल की इमारत जगमगा उठी। रोशनियों से चमकता जीरो का हिंसा सबकी तवज्जो का मरकज रहा। कोरोना को खतरा या सादगी का शौक, मलका बरतानिया ने अपनी सालगिरह सादगी से मनाने का ऐलान कर दिया। सालगिरह के मौके पर तोपों की सलामी से मना कर दिया। कोरोना वायरस ने अमीर और गरीब सबको बराबर ही परेशान कर रखा है। कोरोना के पेश नज़र मलका बरतानिया ने इस साल अपनी सालगिरह सादगी से मनाने का ऐलान किया। उन्होंने अहकाम जारी किए कि इस बार सालगिरह के मौके पर रिवायती अंदाज में तोपों की सलामी न दी जाए, ना ही कोई बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाए। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ ने 68 साल दौरे इक़्तिदार में पहली मरतबा ये अहकाम जारी किए। मलिका बरतानिया 21 अप्रैल को 94 बरस की हो जाएंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची में लॉकडाउन के बाद शादी हॉल्स का काम ठप पड़ा है। शादी हॉल्स के कारोबार से मुंसलिक मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में लॉकडाउन के बायस जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं शादी हॉल्स मालिकान भी परेशानी से दो चार हैं। शहर भर में रजिस्टर्ड शादी हॉल्स की तादाद 650 है, जिसमें 40% बैंक्वेट और 60% आम शादी हॉल हैं। इस शोबे से मुंसलिक वेटर्स, कैटरिंग, मूवी मेकर्स का भी काम बंद हो गया है। शादी हॉल एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर कहते हैं कि शादी हॉल्स बंद होने से अब तक करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। जैसे कि आपके इल्म में है कि 13 लास्ट प्रोग्राम हमने 13 मार्च को किया था और उसके बाद से आज तक शादी हॉल बंद पड़े हुए हैं। आगे कब तक बंद होंगे कुछ कह नहीं सकते हम लोग, और कब तक सिलसिला चलेगा। इस वजह से तकरीबन अब यकीन करें हज़ारों लेबर बेरोज़गार हो चुकी है और हमारे पास अब देने के लिए पैसे भी कुछ नहीं है। शादी हॉल बंद होने से कैटरिंग का काम भी मुतासिर हुआ। कैटरिंग का काम करने वाले इकबाल यूसुफ कहते हैं शादियां मनसूख होने से बहुत नुकसान हुआ है। तो हमने 25 मार्च तक की बिल्कुल तैयारी करी हुई थी और जिस तरह के प्रोग्राम वगैरह बुक थे उसके हिसाब से जो हमें चिकन वगैरह ये जो होता है इसकी हमें परचेजिंग, चावल हो गया, चीनी हो गई, जो हमारे लवाजमात हैं, तो बेसिकली ये समझ लिए तकरीबन 15 से 20 लाख में तो हम आ गए। कोरोना वायरस से जहां लोग मुतासिर हुए, वहीं मुख्तलिफ शोबाजात का चलता फिरता काम भी बंद हो गया है। कैमरामैन एहसन रज़ा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कोरोना लॉकडाउन के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से इराक में 35 से ज़ायद पाकिस्तानी फंस गए। पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के लिए हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। इराक के शहर अरबिल से बोल रहा हूँ। हम 14 मार्च से लॉकडाउन में हैं और तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं। मेरे साथ तकरीबन 35 से 40 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं जो कि पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। ये तमाम लोग एज एक्सपैट यहाँ ऑयल एंड गैस, NGOs और टेली कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं और हर माह लाखों डॉलर ज़िले मुबादला के तौर पर वतन भिजवाते हैं और अब हम मुश्किल में हैं। हमारी गुजारिश वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से है कि खुदारा हमें इस मुश्किल से निकालें। हम अपने वतन, अपने प्यारों के पास वापस आना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। IMF ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जामे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें खसारा बढ़ने, आमदन घटने, 50 की दहाई के बाद पहली मरतबा शरह नमू मनफी रहने के खदशात का इजहार किया गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस 16 अरब 83 करोड़ डॉलर जबकि आइंदा माली साल 13 अरब 86 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियां शेड्यूल हैं। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक के 7 अरब 90 करोड़ डॉलर वापस करने हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने चीन को 3 अरब 48 करोड़, सऊदी अरब का 2.5 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात का
1 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह नमू 50 की दिहाई के बाद पहली बार -1.5% रहेगा। तरसीलात ज़र में 2 साल में 5 अरब डॉलर कमी का खदशा, जबकि टैक्स रेवेन्यू में इस साल 1330 अरब रुपए कमी मुतवक्के है। 5238 अरब के नजरसानी हदफ के बजाय सिर्फ 3908 अरब जमा होंगे। हुकूमत को 3916 अरब रुपए माली खसारे का सामना है। IMF के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान के तरक्याती कामों के अखराजात मुतासिर होंगे। हुकूमती आमदन 5979 अरब, अखराजात 9836 अरब से तजावुज कर जाएंगे। लॉकडाउन से मुतासरा तबकों के लिए रिलीफ एहसन इकदाम है और कारोबारी तबके के लिए कर्जों की वापसी मुअख्खर करना भी खुश आइंद है। रवां माली साल 2019-20 के पहले 9 माह में तरक्याती फंड्स की मद में तकसीम रकम की तफसीलात जारी कर दी गईं। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक डेवलपमेंट फंड्स के लिए 522 अरब 21 करोड़ से जायद जारी किए जा चुके हैं। वजारत मनसूबाबंदी की जानब से तरक्याती फंड्स की मद में तकसीम की गई रकम की तफसीलात जारी कर दी गयी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स की मद में 522 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद जारी किए गए। वजारत मनसूबाबंदी की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 27 अरब 7 करोड़ रुपए जारी किए गए। पाकिस्तान रेलवे डिवीजन के लिए 10 अरब 76 करोड़ 32 लाख रुपए। वजारत दाखिला के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स की मद में 7 अरब 72 करोड़ रुपए से जायद जारी किए गए। दस्तावेज के मुताबिक हेल्थ डिवीजन के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स की मद में 8 अरब 36 करोड़ रुपए जारी किए गए। रवां माली साल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 154 अरब 5 करोड़ रुपए से जायद जारी किए जा चुके हैं, जबकि मुल्क में सिक्योरिटी में इजाफे के लिए 38 अरब 49 करोड़ रुपए जारी किए गए। वजारत मनसूबाबंदी की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए 41 अरब 78 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए, खजाना डिवीजन के लिए 7 अरब 63 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी तरह से वजीर आजम यूथ हुनरमंद प्रोग्राम के लिए 1 अरब 51 करोड़ की रकम जारी की गई। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के लिए भी फंड्स की मद में रकम जारी की गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म के मराठी पैकेज को खुशाइन करार दिया। उनका कहना है इस पैसे से अमीर और गरीब दोनों को फायदा पहुंचेगा। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में तकरीबन तमाम कारोबारी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया है। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से तामीराती कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए मराद के ऐलान ने इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में खुशी की लहर पैदा कर दी है। रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर नूर अहमद ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। तामीराती शोबे में मराद दी है, ये खुशाइन बात है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और इसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। डिफेंस और क्लिफ्टन से ताल्लुक़ रखने वाले बिल्डर सैयद वासिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म के इस इक़दाम ने तामीराती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दिल जीत लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है। लाखों लोगों से इससे रोज़गार से वाबस्ता है और लाखों लोग को मज़ीद इससे रोज़गार मिलेगा। ये एक इंडस्ट्री नहीं है, कोई 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं। जब ये चलेगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इसको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लॉकडाउन के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका मजदूरों का है। वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले से मजदूरों के घरों में एक बार फिर चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से दिए गए तामीराती सनत को मराठी पैकेज से न सिर्फ तामीराती सनत को फ़ायदा होगा बल्कि इससे आम आवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकेगी। कैमरामैन एहसन रज़ा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। पेशावर में महंगाई ने एक बार फिर रमजान आने से कबल ही सर उठा लिया। पेशावर में अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस महमूद। पेशावर में रमजान मुबारक के आते ही अशिया खुरनोश और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेशावर के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए चलते हैं उन्हीं की जुबानी सुन लें। अभी बारिश की वजह से ये टमाटर महंगा हुआ है। मतलब बारिश के मौसम में टमाटर की पैदावार कम होता है। प्याज जो है पाकिस्तान ने हुकूमत की पॉलिसी है कि हम बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे, उसकी वजह से मतलब लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ है। और न कोई पूछने वाला, क्योंकि उनके पेट भरी हुई हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि गरीब आदमी क्या खाएगा। गरीब आदमी करते हुए ये दाल वगैरह, ये जो चटनी मटनी करते हैं वो चीज़ भी महंगी है। पहले तो हम बोलते हैं कि चलो एक प्याज वो कर लो, प्याज के साथ खा लो। प्याज भी नहीं खा सकते, 70-80 रुपये का किलो वो हो गया। इस तरह धनिया हो गया, इस तरह
तो मैं कहता हूँ कि ये कंट्रोल करना इनकी बस की बात नहीं है। जब 30 रुपए का टमाटर किलो है वो 80 में देते हैं, 100 में भी देते हैं। इसके अलावा जो आवाम है उसका कारोबार भी ख़राब है, उसकी मशीयत भी ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा उसके डबल रेट भी है, आवाम बहुत परेशान है। और अभी कुछ दिन बाकी है, इसका रेट यही हाल है। अगर रमज़ान भी आएगा तो इसके फिर क्या होगा? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ एक्शन ले। रेट तो वही की वही है, कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, वही की वही। बहुत महंगाई है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अशय खुदनोश और सब्जी की कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ दी जा सके। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। एलडीए ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पर 25 रोज बाद जुज़वी तौर पर काम का आगाज कर दिया है। ताहम ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक मुकम्मल तौर पर सील है। ट्रैक से मुल्का सड़कों पर तामीराती काम भी शुरू हो चुका है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। अरबों रुपए की लागत से बन रहे ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे पर 25 रोज बाद काम का दोबारा आगाज हो गया, जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन तामीराती काम कर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा जून में मुकम्मल करने का कहा गया था। जीटी रोड पर दरोगे वाला से डेरा गुजरा तक टाइल लगाने का काम किया जा रहा है। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ फुटपाथ, सड़क और पार्किंग के लिए तामीराती काम भी शुरू कर दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए मोहम्मद नुमान के मुताबिक डेरा गुजरा से दरोगे वाला तक मुकम्मल ट्रैक पर काम जारी है। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से लेबर मौजूद नहीं। दूसरी जानिब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और ट्रैक पर अभी तक चीनी इंजीनियर्स को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर 25 रोज बाद दोबारा काम का आगाज कर दिया गया है। शहरियों का कहना है ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आए। कैमरामैन दिशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क के बालाई इलाकों में बादलों की लपेट है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों का बसेरा है। वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। जड़वा शहरों में काली घटाएं छाई हुई हैं। वक्फे वक्फे से बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, सियालकोट, चकवाल समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश उकाड़ा में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नारवाल में 46, लाहौर 30, मरी में 29 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। दीर, चित्राल, मनसेरा, एबटाबाद, पेशावर, चारसदा और कुरम में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित पाकिस्तान और कश्मीर में बादल गरजें बरसेंगे। बाद मकामात पर यालाबारी भी होगी। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दादू में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी के लिए ना तो सेंटर्स कायम किए गए हैं और ना ही काश्तकारों को बारदाना दिया गया है, जिसके बायस काश्तकारों का गंदम खुले आसमान तले खराब होने लगा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शोएब तईम। दादू में कहीं गंदम की कटाई तो कहीं थ्रेशर का अमल जारी है, लेकिन गंदम खरीदारी के लिए सरकारी सेंटर कायम नहीं किए गए, जिसके बायस हालिया बारिशों की वजह से गंदम खुले आसमान तले खराब होने लगा है और गंदम की खरीदारी न होने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान का अंदेशा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, ना कोई सरकारी सेंटर काम किया गया है, ना कोई हम काश्तकारों को, मजदूरों को, ये यहाँ पर हमने ये जो गंदम हमारा पड़ा हुआ है, ना ही कोई हमें कोई सरकार की तरफ से कोई बारदाना वगैरह कुछ मिला है। अभी मौसमियात की हालत ऐसी है कि हम गंदम अगर ऐसे ही खुले आसमान के तले रखते हैं तो बारिश पड़ती है, वो गंदम खराब हो रहा है। काश्तकारों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को ना तो बारदाना फराहम किया गया है और ना ही गंदम खरीदने के लिए कोई सेंटर कायम किए गए। महकमा फूड के अमलदार काश्तकारों को बारदाना फराहम करने की बजाय व्यापारियों को बारदाना दे रहे हैं, जिस वजह से मजबूरन काश्तकार सस्ते दामों गंदम व्यापारियों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमारा जो गंदम जो है आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, व्यापारी को अनाज दे रहे हूँ, किसी भी 3000 रुपये बोरी खरीद रहे हैं। क्या करूँ, हम गरीब हैं, हम अगर एक फसल एवरेज नहीं दे रहा है, 3000 रुपये बोरी व्यापारी खरीद रहे हैं। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि जिला दादू में गंदम की खरीदारी के लिए फौरी तौर सरकारी सेंटर कायम करके काश्तकारों को बारदाना फराहम करके उनसे बेचैनी दूर की जाए ताकि उन्हें नुकसान का सामना करना न पड़े।
शुएब तईम, सच टीवी, दादू। कराची में लॉकडाउन के बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल जगह जगह पुलिस को चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सिर्फ नाकों की हद तक महदूद होकर रह गई। मुजाहिर सईद रिपोर्ट करेंगे। जगह जगह नाके, शहरियों के साथ सख्ती, घर से निकलने वाले अफराद को वापस घर जाने के लिए जबान और डंडे का आजादाना इस्तेमाल। पुलिस की जानिब से ये तमाम अमली इक़दाम सिर्फ शहरियों के लिए नजर आते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस अफराद बासानी घर से निकलते हैं। शिकार किया और ये जा वो जा। न्यू कराची सेक्टर 11 में दिन दिहाड़े लूट मार का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने शहरियों के साथ लूट मार की और असला लहराते हुए बआसानी फरार हो गए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने ऑनलाइन टैक्सी के दफ्तर को भी न बख्शा और रात की तारीकी में लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर चीजें चोरी करके बआसानी फरार हो गए। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मुजाहिर सईद, सच टीवी, कराची। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भीख मुनाफा बख्श पैसा पेशा बन चुका है। शहर शहर करिया भिखारियों की तादाद में यकदम इजाफे से शहरी परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही भिखारी माफिया ने चौकों चौराहों पर डेरे जमा लिए। कोरोना से डरे और सहमे शहरियों को भिखारियों ने मजीद खौफजदा कर दिया है। भिखारियों का कहना है कि अगर जिंदगी चाहते हो तो सदका और खैरात हमें दो, वरना अज़ाब इलाही का इंतजार करो। ऐसे में खौफजदा हर शहरी पैसे देने पर मजबूर है, जबकि सफेद पोश तबका भूखे पेट सोता है। गदागरों की टोलियों को सुबह सवेरे माफिया के अफराद गाड़ियों में ड्रॉप करते हैं और रात गए इनको दोबारा वहां से पिक कर लिया जाता है। माफिया के एहलकार लॉकडाउन के दौरान भी सरगर्म रहे। लॉकडाउन के दौरान भिखारियों ने चोरी चकारी को अपनाया और घरों में महसूर शहरियों के लॉन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और बाइक्स पर खूब हाथ साफ किया। पुलिस एहलकारों ने पकड़ा तो भूख का बहाना बनाकर जान छुड़ाने में कामयाब रहे। भिखारियों का कहना है कि काम करने से माहाना 10 से 15 हजार कमाए जा सकते हैं, जबकि यहाँ हम 1 से 2 हजार तक रोजाना शहरियों से वसूल करते हैं। इस तरह आमदन 50 से 60 हजार तक पहुँच जाती है। इसलिए अब कई मजदूरों ने भी ये पेशा अपना लिया है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 258 रोज हो चुके। इंसानियत सोज वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोरोना की आड़ में मजलूमों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी गई है और रियासती दहशतगर्दी के वाकयात मामूल बन चुके हैं। वादिया जन्नत नजीर में भारतीय फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूक मांगने वालों को पस जिंदान डाल देना, बच्चों को यतीम कर डालना, खवातीन की इस्मत दरी, डकैती की वारदातें अंजाम देना काबिज फौज की पहचान बन चुका है। वो कौन सा जुल्म है जो भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में न ढाया हो। वादी का हर चौक, हर नगर जुल्म और बर्बरियत का गवाह है। ना जाने कितने घरानों के चश्मो चराग गुल कर दिए गए। लापता नौजवान का न कोई सुराग है और न ही इल्म के जिंदा भी हैं कि शहीद कर दिए गए। मोहलिक वबा के फूटने से बुज़दिल फौज के हौसले मजीद बढ़ गए। दवा के नाम पर कैदोबंद और जबरी पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। 8 माह से जायद के कर्फ्यू के दौरान कश्मीरियों को दवा और इलाज की सहूलियात नहीं दी गयी। जान बचाने वाली अद्वियात की तरसील को जबरी रोकने वाली मोदी हुकूमत कोरोना के इलाज का महज ढोंग रचा रही है। मकामी डॉक्टर्स पर ताहाल कश्मीरियों के इलाज पर पाबंदी आयद की गई है। कारोबार ठप और दस्तगाहें वीरान हैं। मजलूम कश्मीरियों को इंसानियत के दुश्मनों से न जाने कब निजात मिलेगी। अजीब देश है भारत, जहां इंसान मर जाए तो कोई आखिरी रसूमात भी अदा करने को नहीं आता, मगर जानवर मरे तो सारा मुल्क ही उमड़ जाता है। रियासत तमिलनाडु में बैल के मरने पर हजारों अफराद इकट्ठे होकर बैल की आखिरी रसूमात अदा की। कहाँ का लॉकडाउन, कैसी पाबंदियाँ। भारतीयों का देवता बूढ़ा बैल मरा तो हजारों लोग पाबंदियों को रोते हुए रोते पीटते सड़कों पर उमड़ आए। बैल की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दराज से लोग अपने देवता को आखिरी बार देखने पहुँच गए। हजारों लोगों को एक साथ इकट्ठा देखकर भी भारतीय हुकूमत और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। न हंगामा हुआ, न कौमी सलामती को खतरा महसूस हुआ। भारतीय शहरी मौली को बैलगाड़ी पर बिठाए घंटों खड़े रहे। हर आने वाला बैल के गले में हाथ डालता रहा। नोटों की भी खूब बरसात हुई। बूढ़ा बैल मकामी मंदिर से मुंसलिक था, जिसे मुकाबलों के वक्त खूब दौड़ाया भी जाता था। कोरोना फैलाने का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देने वाली भारतीय हुकूमत हिंदुओं के इतने बड़े इज्तिमा के बावजूद खामोश रही। रियासत तमिलनाडु में पहले ही मरीजों की तादाद 1200 से जायद है। बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने से जाने कितने लोगों से वायरस मजीद फैला होगा। ना आकबत अंदेश मोदी हुकूमत ने लोगों को इकट्ठा होने से तो न रोका।
अब कोरोना मरीजों के सैलाब को देखकर मलबा फिर मुसलमानों पर डालकर मुजालम का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के जिला कुंदूज में तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 जवान हलाक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। तालिबान ने 7 अफसरान को अगवा कर लिया। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अफगानिस्तान के जिला कुंदूज में सिक्योरिटी फोर्सेस पर तालिबान ने हमला किया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान हलाक और 2 जख्मी हो गए। तालिबान ने 7 अफसरान को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तसादुम का ये सिलसिला 6 घंटे तक जारी रहा, लेकिन असलहे की किल्लत और सप्लाई ना होने की वजह से 6 घंटे के तसादुम के बाद तालिबान ने सिक्योरिटी पोस्ट को तबाह कर दिया। यमन में जंगबंदी के दावों के बावजूद सऊदी इत्तेहाद की जारहियत का सिलसिला जारी है। यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने बमबारी की है। दुनिया को दिखाने के लिए जंग बंदी मुआहदे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स। यमन में सऊदी जारहियत न रुक सकी। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अल हदीदा पर 82 मरतबा हमले किए। इसके अलावा सऊदी जंगी इत्तेहाद के तैयारों ने मारब पर भी बमबारी की। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने 1 हफ्ते कबल यमन में जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन जंगबंदी के ऐलान के सिर्फ चंद घंटे बाद ही सऊदी इत्तेहाद ने अपनी ऐलान करदा जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। सऊदी इत्तेहाद तमाम तर हमलों के बावजूद अब तक अपना एक भी मकसद हासिल नहीं कर सका। दूसरी जानिब यमन के दिफाई ताकत का जायजा लिया जाए तो गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान यमन की फौज और अवामी रज़ाकार फोर्स की दिफाई ताकत में गैर मामूली इजाफा हुआ है और मुहासरे के बावजूद यमनी फोर्सेस की दिफाई ताकत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उधर सऊदी इत्तेहाद के सामने यमन ने शर्त लगा दी है। यमन के अमन मुज़ाकरातकार वफ्द के सरबराह ने कहा कि अमन समझौते का दारोमदार सऊदी जंगी इत्तेहाद की जानिब से हमले बंद करना और मुहासरा खत्म करने के फैसले पर मुनहसर है। दबाव डालने के हरबे कारगर साबित नहीं हो सकते। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने 10 साल बाद इंसानों पर मबनी खलाई मिशन भेजने का ऐलान किया है। रॉकेट और उस पर नस्ब खलाई गाड़ी फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 27 मई को रवाना होगी और 2 खलाबाजों को बैनुल-अक़वामी खलाई सेंटर तक ले जाएगी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रॉकेट और खलाई गाड़ी को निजी कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया है। 2011 में स्पेस शटल के रिटायर होने के बाद से नासा इंसान को खला में ले जाने वाले मिशन के लिए रूसी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा था। अगर मिशन कामयाब हो गया तो स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो नासा के खलाबाजों को खला में भेजेगी। जिंदगी रवां दवां, जरा फासला दूर रहें, महफूज रहें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें, अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। स्टे होम, स्टे सेफ। डॉक्टरों और पाक फौज को सलाम। हमारी तरफ से सब डॉक्टर्स को थैंक यू। अपने फौज और सिक्योरिटी तालों और डॉक्टर साहिबान को सलाम पेश करता हूँ। अपनी फौज, सिक्योरिटी दानों और डॉक्टर साहिबान को सलाम पेश करती हूँ। And stay at home, please, and wash your hands. Thank you. हमें रोजाना सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अपने घरों में रहना चाहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच।